Hello, friends. And in this series, we are taking up 5 questions, as you can see on your screen also, which reflects both factual and also analytical element. And in the course of preparation, everybody read these areas, but then the question arises how beautifully and how constructively and how in depth one is able to bring these answers and ideas. So let's see the answers, and then we can only make out that how we can learn and we can analyze. So it is a very important interactive exercise which I believe is going to help all of us. तो हम देखते हैं कि क्या चाहता है क्वेश्चन और we will try to in very simple words we will try to understand. So the first question says that the major phase in temple architecture in India associated with the Hoysala dynasty. You must be aware Hoysala dynasty तो पता ही होना चाहिए, टेम्पल्स का नाम पता होना चाहिए, चाहे फिर वो होलेश्वरा टेम्पल है, चाहे फिर वो आपका चिन्ना बसवा टेम्पल है. एंड देन वन मस्ट हैव अ विजुअल आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ इकोसिस्टम दोज टेम्पल रिप्रेजेंट्स. अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है देन इट विल बिकम अ वेरी जेनरिक आंसर बिकॉज यू हैव टू राइट इन 250 वर्ड्स. इन 250 वर्ड्स विदाउट क्लैरिटी ऑफ थॉट वन कैन नॉट राइट. इन सच आंसर्स वन स्कोर वेरी गुड मार्क्स अगर वो टेम्पल का एक बेसिक प्लेटफॉर्म इलस्ट्रेट करेंगे और साथ में अगर कंपेयर भी कर दे, बोल दें थोड़ा सा कि कैसे वेसारा स्टाइल से या फिर द्रविड़ा स्टाइल से कैसे एक एक इन्फ्लुएंस है सारे उसके अंदर. Then it is talking about temple architecture, so we cannot start talking about temples and control over them. So language has to be very standard. You can't say control over them signifies strength and power of a kingdom. Rather than saying that, temple architecture reflects whole ecosystem. It reflects socio-economic and socio-political culture of a kingdom. So language is very important. Language decides what you want to portray. There is no there is no escapism from it. So temple signifying the wealth of the kingdom, that is true, but then the question is asking about temple architecture. Architecture comes through a kind of a visualization, like the way you want to decorate your room or you want to wear a dress, you want to go to a certain place to enjoy. It is similarly of that sort. So major phase में आपने लिखा Hoysala dynasty Dravidian temple architecture was patronized by the kings like Pulakeshin II. So even here good effort, but the factually it is factually incorrect क्योंकि द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का प्राइमरी फेज या इनिशियल फेज स्टार्ट होता है जब हम बात करते हैं चालुक्यास ऑफ बादामी की. तो चालुक्यास ऑफ बादामी में भी आप ये नहीं बोल सकते, तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया, लेकिन ठीक है कुछ कोशिश तो की, कोई बात नहीं. Chiseled soapstone and sandstone were used for sculpting the walls and engravings. That is true. This is not wall and engravings. अब सोपस्टोन का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए. सोपस्टोन और सैंडस्टोन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा डेलिकेट सॉफ्ट होते हैं. उनको आप किसी भी शेप में कार्व कर सकते हो. तो वहां पर जो पिलर्स हैं और वहां पर जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं वो ऐसे एकदम 3D प्रिंटिंग की तरह है. उनको कोई देख के हाथ लगाए तो उसे लगेगा कि यार ऐसा तो जिंदगी में हो ही नहीं सकता. इतने चमकदार ब्लैक स्टोन भी वहां पे यूज हुआ है और मतलब अमेजिंग अमेजिंग कार्विंग. लेकिन वो आपको महसूस होनी चाहिए तो आप आंसर में ले पाओगे. वेरी ट्रू, द थीम्स आर देयर फ्रॉम महाभारत एंड रामायण. बट क्यों है महाभारत एंड रामायण? बिकॉज दीज एपिक्स रिफ्लेक्ट द कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी. दैट इज वाई आर्किटेक्चर से इसका मतलब सोशियो कल्चरल लिंक है. सो देन यू आर टॉकिंग अबाउट होयसलेश्वर टेम्पल, हेलाबिट टेम्पल, गंगाईकोंडा चोलापुरम इज नॉट अ होयसला स्टाइल टेम्पल. इट रिफ्लेक्ट्स द पीक ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. आप सारा ऐसा गोलमोल नहीं कर सकते. सो in the course of your revision you will be better able to understand that how to bring it, but then you are writing on your own trying to create a structure that is appreciated. So it's a good learning phase. Therefore building large temples created links with socio cultural. बात ठीक है, लेकिन वहां पर टैंक बनेंगे. टेम्पल कॉम्प्लेक्स में भी टैंक होगा. टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बाहर जो है पूरा टेम्पल सिटी बन जाता है साउथ इंडिया में. पूरा सिटी इज कॉल्ड टेम्पल सिटी. तो आर्किटेक्चर में आपको बताना चाहिए था कैसे मेन गर्भगृह है जहाँ सेंटम सेंटोरम बोलते हैं. उसके बाद उसके चारों तरफ एक सर्कम एम्बुलेटरी पाथ भी होगा जिसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है. देन देयर वुड बी अ कॉन्ग्रेगेशन रूम जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर सत्संग या फिर जो भी होगा. देन यू विल हैव अदर काइंड ऑफ मंडप्स
विच विल बी हेल्पिंग इन अदर एक्टिविटीज ऑफ अ टेम्पल, जहाँ पर कहीं पे भोजन होगा, कहीं पर फेस्टिविटीज होंगी, कहीं पर लॉजिस्टिक्स जो एस्पेक्ट होते हैं, तो ये आपको सब देखना पड़ेगा कि एक टेम्पल इज ए तो लिविंग जैसे बॉडी। क्वेश्चन कह रहा है मेजर फेज था इस टाइम पीरियड पे, तो ये बेसिक आर्किटेक्चर फीचर्स तो नगरा स्टाइल में भी थे, तो ये मेजर फेज सब कैसे था जगह इस नहीं। टाइम पीरियड में? हाँ, तो फेज इसलिए था ना कि अगर सब जगह सेम चीज थी तो फेज नहीं है मेजर फेज। जब आप क्लास 6 में थे, क्लास 6 से 8, अगर कोई कहता है कि आपके लाइफ का, आपके स्कूल का मेजर फेज था, वो फेज जब कहा जाएगा जब बाकी पहले की क्लासेस से और बाद की क्लासेस से अगर उस क्लासेस में कुछ अलग हुआ या आपने जिंदगी में कुछ अलग सीखा। क्योंकि होयसाला डायनेस्टी के जो टेम्पल आर्किटेक्चर रिफ्लेक्शन है, वो ना तो पहले वाले टेम्पल के जैसा एग्जैक्टली है, ना बाद वाले टेम्पल के जैसा एग्जैक्टली है। इसीलिए उसको मेजर फेज बोल दिया उन्होंने। क्योंकि वो जो टेम्पल्स हैं, जो उनका डिजाइन है, उनका जो स्टार शेप प्लेटफॉर्म है, उनके बाद जो आप उनका जो फोटो देखते हो, उसका कंपैरिजन आप दूसरे फोटोग्राफ से करते हो, तो दोनों सेम नहीं है वो। दैट इज वाई इट बिकम्स अ फेज। अदरवाइज तो टेम्पल सारे टेम्पल ही हैं पूरी दुनिया के, वो एक ही होने चाहिए, सब में भगवान ही बैठेंगे बीच में। तो ये तो एक सोच के ऊपर हुआ, वही वाली बात है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मेजर फेज था वो। उस मेजर फेज के कारण आप कह सकते हो पहले के वैल्यूज उन्होंने इम्बाइब किए। उन वैल्यूज को इम्बाइब करके उसको और कॉम्प्लेक्स बनाया, उसको और इंट्रिकेट बनाया, उसको और ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच दी। कोई कोई जो है तालाब के किनारे है, किसी के वहाँ टैंक्स हैं, कोई कैसा लैंडस्केप यूज किया। साउथ इंडिया के वो जो एरिया है, कर्नाटका का जो ये पार्ट है, वो आप अगर उसकी जियोग्राफी समझेंगे तो आपको और ज्यादा आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स वो बोल रहा है इसीलिए। और बिल्कुल एकदम है, क्योंकि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो ऐसे नहीं दी जाएगी, लेकिन जो सोचने का तरीका है और जो समझने का है, हमने पहले भी पल्लवास का और जो एंशियंट इंडिया के जो हमने, आई रिमेंबर दोस लॉन्ग लॉन्ग एक्सरसाइजेस व्हिच हैड बीन डन, वो एक्सरसाइजेस इसी कॉन्टेक्स्ट में थी, इसी डायरेक्शन में थी वो। अकाउंट ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन एंशियंट इंडिया। अब एंशियंट इंडिया बोल दिया, यानी मेगास्थनीज से लेकर और अलेक्जेंडर के इन्वेजन से लेकर आपका जब तक जो मन करे एंशियंट इंडिया में आप कुछ भी बताइए। ग्रीक हिस्टोरियंस, वेदर दे हैव कम टू इंडिया, वेदर दे हैव नॉट कम टू इंडिया, whether they are writing from primary sources, whether they are writing from secondary sources. तो rather than writing in the beginning Pakistanis Ptolemy Pliny, ये तो है ही, लेकिन वो बोल रहा है कि दे प्रोवाइड वैल्यूएबल सोशियो इकोनॉमिक। तो आप बताइए कि कैसे ग्रीक जो हिस्टोरियंस का जो लिटरेचर है, जिसको हम क्लासिकल लिटरेचर भी कहते हैं, इट गिव्स एन इंपॉर्टेंट इंसाइट इनटू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशियंट इंडिया, जैसा आपने शुरू में लिखा भी। और अब ऐसा नहीं है मोस्टली दे बिलोंग टू टाइम पीरियड ऑफ मौर्य, तो ठीक है, मतलब मौर्यन पीरियड तक आप कहते हो, उसके बाद भी ग्रीक ट्रेडर्स रहे हैं, यवनाज रहे हैं। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की जो बात आती है उससे ही पता लगता है कि हमारे यहाँ ट्रेडिंग होती रही। साउथ इंडिया का जो मालाबार कोस्ट है उसका भी हमें पता लगता है, लाइफ का पता लगता है, लाइफस्टाइल का पता लगता है, सोसाइटी का पता लगता है, ड्रेस का पता लगता है, इवन कास्ट सिस्टम पर भी कमेंट किया है। तो वी कैव टू कीप अ ब्रॉड आइडिया whether you are aware of it or not, but you can really bring those ideas here. So let's see आगे क्या लिखा है। कोशिश बहुत अच्छी है, चलिए। Megasthenes Indica talks about socio-economic life, trade, capital punishment, slavery. Common during, अब capital punishment common during Ashoka's reign. This is a मतलब एक बड़ा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। अशोका ने तो कोशिश की, बाद में जो उसके एडिक्ट्स है में पता लगता है कि देन इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस इज गोइंग टू गिव कॉमन, ही इज गोइंग टू गिव कैपिटल पनिशमेंट। अगर मेगास्थनीज ने ऐसा बोला है तो ठीक है, चलिए, आपकी बात आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी। ट्रेड का आपने ठीक एग्जाम्पल दिया, लेकिन वो कह रहा है कि आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को सेंटर में रखते और उसको फिर बताते ये सोचने की कंडीशन डिपिक्ट की है। और फिर इस लिटरेचर, इस मतलब इस ग्रीक हिस्टोरियन ने ऐसा बोला, दैट कुड हैव बीन वन वे। सो रादर देन दैट व्हाट यू डिड, यू टुक अ टफ अप्रोच। यू टुक ए अप्रोच जिसके अंदर आप एक टॉलमी का बता रहे हो, एक बैगस्नीस का बता रहे हो, ज्यादा टफ अप्रोच है ये टफ है। जबकि जो अप्रोच वो लेते तो ज्यादा इजी रहती है और ज्यादा साइंटिफिक भी होती।
Geographical extent and important ports, for example, in Odisha, Bengal outposts along with Ganga, Yamuna, inland ports. तो ऊपर ही आपने ट्रेड की बात की है, तो ट्रेड के साथ ये बात जुड़ सकती है. फूड प्रोडक्शन, wheat, barley, ground were majorly cultivated. चलिए आगे. Pliny's Naturalis Historica relations with trade with Romans, Egypt happened via Afghanistan. He mentioned about gold trade from India, coinage system during Maurya's initiated by Chandragupta Maurya, for example, silver पंचमार्क coins. ठीक बात है, बिल्कुल symbol of sun and king. Socio economic, तो सारा इकोनॉमिक तो आपने बताया, सोसाइटी कहाँ आई? सोसाइटी अगर आपको बताने का इतना आइडिया, आपको इतना मतलब कि आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई सोसाइटी, वुमेन की कंडीशन क्या है, एग्रीकल्चर की पोजीशन क्या है. स्लेवरी की आपने एक लाइन में बताया, तो क्या दास थे, दस्यु थे, रिपब्लिक्स भी थे उस टाइम पे. तो वो आपको एक वैरिड आइडिया देना है. यू हैव व्हाट यू हैव डन इज दैट यू हैव बॉट लॉट यू हैव ब्रॉट लॉट नंबर ऑफ फैक्ट्स, बट एक्चुअली मोर सिंपल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड. ये सारे फैक्ट उस एनालिसिस का पार्ट अपने आप बन जाएंगे. आप कह सकते हो कि बार्टर इकोनॉमी के साथ साथ मनी बेस्ड इकोनॉमी की बिगनिंग हुई, एज रिफ्लेक्टेड बाय सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स. This is mentioned even by Ptolemy or even Erythris of जो है आपका एक एक बहुत important ग्रीक सोर्स है वो. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द कंप्लीट नेम. रिप्लेस हो रहा था. ऑफ एरेंसी, वो नाम दे सकते हो. तो ये सब मतलब नाम देना वो नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक सेंटर में रखना चाहिए था. और अच्छी कोशिश की, ये हम कह सकते हैं. डिस्कस द रोल प्लेड बाय इंडियन डायस्पोरा इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, especially during the first half of the 20th century. Indian diaspora during the freedom struggle played a crucial role, keeping the international connected with the coercive, not connected. Indian diaspora went on to make the world aware about the brutality of the British rule. Connected भी word की जगह awareness होना चाहिए. British policies being implemented in India, not keeping it a close colonial conquest. Okay. In the beginning, Mahatma Gandhi's experience South Africa saw first connect with the Indian diaspora. Revolt for rights of indigent labor, satyagraha for identity and citizenship right. This is a wonderful example and very beautifully put up. Principles of non-violence and truth. Revolutionary movement could gather support from Japan and Canada. Komagata Maru incident in Canada. Ghadar movement could operate outside India due to Lala Hardayal Singh and Sohan Singh Bhakhna. Literature and magazines played a crucial role in awareness, like Ghadar newspaper. Contributions from First World War by Indian Army, supported by Mahatma Gandhi. Indian Army and Subhash Chandra Bose. Good examples. Simply put up, good flow. But लेकिन आप इंडियन डायस्पोरा जैसे, तो अब ऐसे तो मैडम बीकाजी कामा भी बहुत समय बाहर रही, और उसके सरदार सिंह राणा भी थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे. इंडिया हाउस आपको लेके आना चाहिए था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन और हब था हमारे लिए. और उसके अलावा एक दो नाम और भी, जैसे आपने बोला इंडियन नेशनल आर्मी में आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, लेकिन उनके भी जो एक तरीके से फॉलोअर नहीं, आई एम सेइंग इट अदर वे अराउंड, उनके भी जो एक इंस्पिरेशन है वो थे आपके रास बिहारी बोस. और आप साइंटिस्ट का बोल सकते हैं. तो मतलब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ विद द सेम इंफॉर्मेशन, थिंग्स कैन बी पुट अप मोर ब्यूटीफुली, बिकॉज पढ़ने से तो सारा नहीं हो सकता. सो इट हैज टू बी क्रिएटेड एंड इनकलकेटेड बाय द प्रोसेस and by the self-belief. Discuss the reasons behind the emergence of environmental movements and their significance in post-independent India. तो reasons बोल रहे हैं, modernization and environment sustainability have remained at crossroads with each other. ठीक बात है. Reasons behind emergence, आप ये एक लाइन और लिख देते हैं कि इंडिया जैसे डेवलप होता है तो every country needs to sustain itself, and डेवलपमेंट मॉडल बनेगा तो नेचुरली वो चैलेंजेस आएंगे. Reason behind emergence: tribal right protection, forest land and threat of displacement. For example, चिपको movement. Now चिपको मूवमेंट इज नॉट बिल्कुल वो फॉरेस्ट को बचाने के लिए और ट्राइबल राइट्स के लिए सिर्फ नहीं हो, तो वो तो मतलब इसे ब्रॉड है उसका एस्पेक्ट. वाई पूछ रहा है, तो वाई में आप और पॉइंट लेके आइए. वाई में अगर अनप्लान्ड तरीके से अर्बनाइजेशन होगा, अनप्लान्ड तरीके से डेवलपमेंट होगा, अनप्लान्ड तरीके से आप इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, तो नेचुरली फिर इन्वायरमेंट के कॉन्फ्लिक्ट में आप आएंगे. सिग्निफिकेंस भी उसका यही है कि इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग and nudging the central government or you can say the government institutions की वो जो है उस तरफ बढ़े जिस तरफ बढ़कर दोनों का एक मिनिमम बैलेंस रखा जाए. So environmental cost and understanding of the future repercussions if no action taken today. मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन. एंड ये ठीक से नहीं पुटअप हुआ और अच्छे से पुटअप हो सकता था. क्रॉनिक कैपिटलिज्म लूप होल्स इन EIA in Kerala silver line project.
and irreversible changes due to climate change, for example, 1.5 degree increase, social cost, decline in the quality of life, disease burden, risk of disasters. तो अच्छे पॉइंट आए, लेकिन ये टिडबिट्स में आए, वाई एंड सिग्निफिकेंस। तो वाई एंड सिग्निफिकेंस को और थोड़ा सा लिंक करके, ऐसे ही पॉइंट वाइज होता है लेकिन थोड़ा लिंकेज अच्छा होना चाहिए था। आई कांट मेक आउट स्मूथ लिंकेज बिटवीन ऑल द पॉइंट्स, otherwise points are fine because points are definitely they are highlighting and pushing towards it। थोड़ा सा वो हो सकता था, मतलब more clarity, and when you are writing more commitment towards more confidence in not commitment, that would have helped you better। चलिए next। Okay, significance is coming up over here: climate change mitigation and adaptation, survival of humankind, otherwise Anthropocene epoch will lead to 6 months equitable. These are good points. Equitable growth in real sense and not at the cost of environment. Green building code extends extended producer response. Therefore, for India to be a developed country, is sustainable growth is the way forward. Kampa Fund, green energy transition, region specific EIA, sustainable alternative. This was the second part was far better than the first one. The first one was not trying to. It was good. Chaliye. Analyze the possible impact of climate change on Indian Himalayas. What steps can be taken? Now, the two parts of the questions are there. According to IMD, the rate of retreating Himalayan glacier is a way more than what is estimated. Very good. Given this, it can have future. बिल्कुल सही बात. So, dichotomy of water stress and flooding due to cloudburst, as seen in Uttarakhand and Himachal. Food scarcity due to wash away effect on standing crops. ये भी बात सही है. Okay. In Gangetic plains आप लिख सकते थे. Increased frequency of disasters like mass wasting of soil and landslides. In recent years, blocks are listing. I think very simple and clarity से put up किया, बहुत बढ़िया. Disruption to normal way of life when socio-economic infrastructure will be at higher risk. Electricity cost, shutdown, technology intensive, tourism impacted, economic loss and distress migration. Ecosystem loss due to bio-washing away, due to washing away of natural resources and wildlife. Increased chances of wastelands and uninhabitable regions. Now, this is very good. Now, steps to mitigate monitoring and early warning systems to prevent loss of life, Earth observation satellites. Good. Way to capture carbon stored in glacier ice when it starts melting. Water management in coming perennial rivers. For example, another river project. Lifting of water from surplus melting zones with Indian Air Force to drought-prone plains in central India. This was very interesting. R&D for studying the pathogens dormant in cryosphere. For example, ICMR study frozen microbes. Therefore, short-term measures involve prevention and mitigation to deal with the climate change impacts. However, climate finance is a challenge for developing countries. You could have brought that it will be impacting monsoon system also. It will be impacting the food product, मतलब जो production zone है पूरा वही change होगा. एक थोड़ा सा angle वो आता, but otherwise I think good effort, simple effort, and you can get good marks for the clarity of thought. टेम्पल आर्किटेक्चर वी आर कमिंग बैक, सो 11th to 14th सेंचुरीज हाइब्रिड. देखिए आप यहाँ देखो, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है. हाइब्रिड है वो वैसारा स्टाइल का और द्रविडियन स्टाइल का, और डिस्टिंग्विश बना देता है उनको. जैसे चिन्ह इन्होंने बताया, चन्नकेश्वर टेम्पल, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. फीचर बताया देखो, यूज ऑफ सोपस्टोन फॉर इजी कार्विंग. इजी कार्विंग, कार्विंग से बहुत अच्छे से किया तो बना दिया. चलिए ठीक है, टेम्पल बता दिया. बिल्ट ऑन स्टार शेप्ड है, सोपस्टोन कार्विंग बना दी. मंडप, क्लोज मंडप, जगती, जगती यानी प्लेटफॉर्म जो नीचे होता है. तो आई थिंक कॉमन सेंस एंड practical approach always helps, so this is helping here. Abundance of intricate sculptures, reflection of skill of sculpture, both narrative and descriptive dimensions are there. Complex form with many projecting angles emerging. फिर उन्होंने हेलेबिट टेम्पल का बताया, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. तो एक विष्णु का बता दिया, एक शिवा का बता दिया. डबल बिल्डिंग विद लार्ज हॉल, नंदी पवेलियन है. इनफाइनाइट वेल्थ ऑफ स्कल्पचर, गुड लाइन. टेल ऑफ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्लेक्टेड. तो टेम्पल के ऊपर विमान होता है, विमाना के साथ शिखर. तो आई थिंक गुड अप्रोच, ठीक है. अगर बात करें थोड़ा सा, लेकिन पहले वाले आंसर में जो प्रैक्टिकल आइडियाज थे वो अगर इसके साथ मिक्स हो जाएं, देन आंसर बिकम्स फार बेटर. So rare beauty and finishy walls, sculptures give idea of temple due to which they get sacred assemblage. The temple reflection of different styles implies beautifully our culture and historical legacy that keep alive in the longer run. So with intricate carving, that is the best development in the context of Hindu architecture. So this is a good approach. पहले वाले आंसर से कुछ पॉइंट्स अगर प्रैक्टिकल यहाँ ले लिए जाए और ये अगर उसमें मिक्स हो जाए, both of them together becomes a very beautiful answer.
Greek account left by Megasthenes describes socio-economic condition of northern India. So Megasthenes gives an earliest detailed description of Indian society. Okay. So now examples are there. Vibrant society थी, wise men perform sacrifices, prediction of natural calamities, elephants as gift to women. अब ये एग्जाम्पल देना मतलब आप खुद एलिफेंट्स गिफ्ट टू वुमेन टू सीक सेक्सुअल फेवर्स. नाउ वी कैन ऑब्वियसली फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव वो जो, अब मेगास्थनीज को तो पता नहीं ना बाद में आप कैसे यूज करोगे, लेकिन वी कैन जनरली अवॉइड एनी सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स बिकॉज इसके इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिफरेंट है, or we don't know really in what context. So what you can say, we cannot put up such ideas. It is better to leave and refrain from writing such examples. Non evidence of slavery, limited scale, forced and bonded labor. सब कुछ नहीं लिख सकते, आपको बताना है कि क्या समाज के जो विभिन्न अंग हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, टॉलरेंस है, अकोमोडेशन है, लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब आपको जैसे पहले आंसर में बहुत अच्छी कोशिश की थी वो एलिमेंट आने चाहिए. चलिए, इमरजेंस ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के रीजंस हैं अनसस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्शन अगेंस्ट द रॉयल ऑर्डर्स एज नेचुरल रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड सीक्रेट टू कीप अलाइव कल्चरल लाइफस्टाइल, अननोन कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन फुटप्रिंट. तो ये आपने एक एग्जांपल बताया. इंडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस है सारी चीजों का, ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट्स का. चलिए आगे. सिग्निफिकेंस में बताया रेजिंग अवेयरनेस लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, दिस इज अ गुड पॉइंट. Protection of tribal communities and their culture, second and third point are good, but then the approach and the structure, like the way we had seen in the first answer, it was good. यहाँ पर भी अच्छे पॉइंट है, यहाँ पर अच्छा है बिश्नोई मूवमेंट, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट द रेज्ड स्टेटस ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट्स. एनालाइज द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इंडियन हिमालयन रीजन. तो पहला आंसर बहुत अच्छा था, जो उसने बहुत क्लैरिटी से बातों को बताया था. यहाँ देखते हैं हम, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, तो श्रिंकिंग ऑफ क्रायोस्फीयर इन्होंने बताया, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है. हिंदू कुश हिमालयस की बात की, क्रायोस्फीयर श्रिंक होगा, उससे मेल्ट होगा, मेल्ट होने से पोलर एंड माउंटेन आइस और बढ़ेगी, राइज इन सी लेवल होगा, कोस्टल इरोजन होगा, फ्लड लाइक कंडीशंस होंगी. फॉर एग्जांपल स्नो लेपर्ड की स्टोन स्पीसीज हैज borne the impact of the same. If rapid melting is there, then due to global warming, devastating consequences will be there. It is saying like glacial outburst in Sikkim. Himalayan region is the world's biodiversity hotspot. This is a good point. Global ecological balance, it will be balance will be hampered. What one can say. National mission on sustaining Himalayan ecosystems is a good example. Awareness and raising education and environment makes some sense. It makes aware about the vulnerability. So अच्छी कोशिश है. आंसर में काफी सारे फैक्ट्स और आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर और लैंग्वेज जैसे पहले आंसर में थी, जितनी कॉन्फिडेंस के साथ उसको पुटअप कर रहे थे, उसमें अगर ये वाले थोड़े फैक्ट और आ जाए, एक दो फैक्ट, जैसे अब ये सोनम वांगचुक और इन सब की जो बात भी हो रही है, लोकल एंड रीजनल इंस्टीट्यूशंस के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की बात हो रही है, नीति आयोग की बात हो रही है, तो ये सारी चीजें मिलाकर अच्छा आंसर बन जाता है. स्नो लेपर्ड की बात फिर से आई और इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात आई. तो मतलब अपनी कहानी बतानी है, कहानी इंपैक्टफुल होनी चाहिए, कहानी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो बात बनेगी. टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग होयसला रिप्रेजेंट सेकुलर एंड कॉस्मोपॉलिटन हेरिटेज. अब सेकुलर और नॉन सेकुलर का एस्पेक्ट उस समय में आप ये कह सकते हैं डाइवर्स है, वो कॉस्मोपॉलिटन आप हेरिटेज कह सकते हैं, क्योंकि उस समय तो टेम्पल है. अब विष्णु टेम्पल क्या सेकुलर, मतलब वो तो एक कल्चरल एस्पेक्ट है ही, वो तो वी हैव टू सी दैट व्हाट वर्ड वी आर यूजिंग. डिस्टिंक्टिव द्रविडियन आर्किटेक्चर की जगह वेसारा और द्रविडियन का मिक्स है, जैसा हमने पहले कहा. होयसलेश्वरा टेम्पल, चेन्नकेश्वर टेम्पल, बसाडी टेम्पल. ठीक है, आपने तीनों एग्जाम्पल बता दिए. सेलियंट फीचर्स में आपने बताया यूज ऑफ सोपस्टोन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, मैथोलॉजिकल ट्रेडिशंस. ठीक है, ये आपने भी अच्छा एग्जाम्पल बताया. कंस्ट्रक्टेड 2 विमानस, गर्भगृह. ठीक है. पिलर बेस्ड आर्किटेक्चर ऑफ तोरणा, सेंट्रल गेटवेज, यक्ष यक्षिणी, जगती एंड स्टेयरकेस, प्रदक्षिणा पथ. ठीक बात है. चलिए, इंट्रिकेट कार्विंग्स. और आर्किटेक्चर को भी अगर सोसाइटी से लिंक करेंगे तो शायद एक आध नंबर फालतू आ जाए, क्योंकि सभी लोग ये लिख पाएंगे. शाल भंजिका इज अ बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली, बट देन इट मे बी देयर एट दैट टेम्पल ऑल्सो. आप में से किसी ने भी मंदाकिनी शब्द अब तक नहीं लिखा. मंदाकिनी के बिना होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता. मंदाकिनी वहां पर इतना बनाया गया है, इतना जबरदस्त उकेरा गया है, ऐसा लगता है जैसे कि मंदाकिनी 3D प्रिंटिंग से निकाली गई है. ऐसे स्कल्पचर है. आप गूगल करके देख लो मंदाकिनी ऑफ होयसाला, पूरा का पूरा गूगल पेज आ जाएगा.
तो इतना कुछ अगर आपको पता है और मंदाकिनी नहीं लिख रहे तो मतलब गजब ही हो गया। डेकोरेटिव ऑफ वॉल्स एंड विद सीलिंग्स रिप्रेजेंटिंग दशावतार। चलिए आगे, ओपन मंडप विद गार्डनिंग एंड टैंक्स, अकोमोडेशन ऑफ लार्ज डिवोटीज। पॉइंट नंबर 7 से आपको स्कोर मिल सकता है। Hoysala temple architecture continued the tradition of temple as a multidisciplinary center connecting society, providing livelihood, enabling social bonds. So I think fair enough, on track. Let's see further. Greek historians like Megasthenes and other provided a detailed cross-cultural illustration. अब ये भी ज्यादा हो गया, डिटेल्ड क्रॉस कल्चरल नहीं है, आप वो बस अपनी साइटिंग्स बता रहे हैं, वो कोई सोशियोलॉजिस्ट थोड़ी ना थे वो, ना वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। वो सिर्फ जो मन में आया उन्होंने लिख दिया, क्यूरियोसिटी थी उनकी। बिटवीन both rich and ancient civilization, between both rich and ancient civilization, particularly the socio-economic conditions, social structure in ancient India as a per existence of natural inequality which was even desired, justified by political setup during that time. चलिए, multiple gates, caste and gotras, fragmenting Indian society into different classes, though Greek found it similar with the Greek. Second point is okay. Societal laws governing the individual and community, for example, Dand Shastra and Dharma Shastra, helping society to follow duties and prevail role of law. Religion as an integral element, influencing lifestyle, arranging even dietary habits, clothing style, and even professions. I think good points. Economic conditions में आपने agriculture based economy की बात की, production barter system. Animal husbandry like cattle were treated as sacred and source of livelihood for several families. प्रेजेंस ऑफ टैक्सेशन आपने बताया, फार्मर से और ट्रेडर से टैक्स लिया जाता था। नो प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, ग्रीक्स को लगा प्रैक्टिस हमारे यहाँ स्लेवरी नहीं है, बात बिल्कुल सही है, मैगस्थनीज ने तो सोचा ही था 7 टाइप्स है और हमारे यहाँ स्लेवरी नहीं है, लेकिन ग्रीक को लगता था यहाँ स्लेवरी नहीं लेकिन स्लेवरी है। सो द अकाउंट्स हेल्प इन इंटरमिंगलिंग ऑफ 2 डिफरेंट कल्चर्स। नहीं ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, इंटरमिंगलिंग नहीं है, मतलब बेसिकली ऐसा थोड़ी ना ग्रीक इंडिया में आ रहे हैं और इंडियंस ग्रीक में जा रहे हैं और फिर दोनों एक दूसरे के कल्चर को चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। एसिमिलेशन ऑफ ग्रीक एलिमेंट्स इज अ वेरी गुड पॉइंट, ये पहले लाना चाहिए था। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीक हिस्टोरियंस ने हमारी सोसाइटी को कैसा डिपिक्ट किया या ग्रीक राइटर्स ने हमारी सोसाइटी को कैसा दिखाया, तो आपको ये कहना चाहिए था इस आंसर के उसमें, अकाउंट ऑफ ग्रीक सोशियो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंशिएंट इंडिया बोल रहा है वो ये नहीं कह रहा कि वो क्या सीखा क्या नहीं। अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंशिएंट इंडिया की आप कह सकते हैं डाइवर्स थी। सोसाइटी वाज हैविंग डिफरेंट सेक्शंस अकॉर्डिंग टू, इन थ्योरी तो वर्ना सिस्टम है, लेकिन वो वर्ना सिस्टम का जब एक्चुअल एस्पेक्ट आता है, क्लासिफिकेशन होता है, तो वो जरूरी नहीं था उतना ही हार्ड कोर तरीके से प्रैक्टिस किया जाता था, ऐसा नहीं था, रूल्स थे। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो राजन होता है, राजा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। स्टेट का आप लिख सकते थे 2 लाइनें कि स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, स्टेट के पास अथॉरिटी है बहुत सारी। वुमेन की फिर एक बात करते कि वुमेन सोसाइटी में एरिस्टोक्रेटिक वुमेन है, उनका भी रोल था, लेकिन वुमेन जो है रेसलर भी हैं, वुमेन एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात। और फिर एक मार्जिनलाइज जो बहुत बड़ा सेक्शन है जिसे आउटकास्ट आप कह सकते हो, उसकी भी इम्पैथी के साथ ग्रीक हिस्टोरियन ने चर्चा की। यानी वो कुछ चीजें समझ पाए थे समाज की, यानी आपको ना हमारे समाज की बुराई ज्यादा करनी है ना हमारे समाज की अच्छाई करनी। जैसे आप सब लोगों ने क्लास 6 में खुद पढ़ा है, कितनी बार पूरी जिंदगी पढ़ते आए हो, कि मेगास्थनीज ने जो पैलेस था, मौर्यन मौर्यन टाइम में जो पैलेस था उसकी चर्चा की थी कि इतना बड़ा पैलेस है, बहुत बड़ा पैलेस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पैलेस बड़ा है तो थ्राइविंग इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, थ्राइविंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इसका मतलब है लोगों के पास थोड़ी बहुत खुशहाली भी होनी चाहिए। आपको ऐसे करके एक पूरा विजुअलाइजेशन देने की जरूरत है, रादर देन थ्योरेटिकल एकदम से कि भाई आउटकास्ट और मार्जिनलाइज का कोई वैल्यू नहीं है, या एक तरफ ऐसे मतलब तोड़ना नहीं है, थोड़ा जोड़ना है, 150 वर्ड में लिखना है। यू हैव द ब्यूटी एंड यू हैव द आइडिया कि आप बहुत कुछ लिख सकते हो, आपका एक एक वर्ड मैटर करता है। अब आप जबरदस्ती उसमें कुछ भी अगर लिख देंगे, दोनों सिविलाइजेशन मैच हो रही है, दोनों मिल रहे हैं, ये कोई मांग ही नहीं रहा है ये सब चीजें। जो नहीं मांग रहा है अगर आप वो लिखते हैं, एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा है 12,000 कैंडिडेट्स पे कि आपका पत्ता कटेगा। 12,000 में से भी जनरल कैटेगरी के सिर्फ मात्र 4,000 होंगे, उसमें से भी मात्र 1,000 को आएगा कॉल, 2,000 1,500 को आ जाएगा। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका हर वर्ड, आपका क्या लिखने जा रहे हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये बात और है कि बाद में थिएटर हो गया, फूड कल्चर हो गया,
ग्रीक लिटरेचर हो गया, ग्रीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बड़ा वर्ड हो गया, कि साइंस साइंटिफिक डेवलप, वो सब बाद में आता है इंडिया में, उस टाइम पे कुछ हो रहा है, लेकिन ग्रीक हिस्टोरियंस या ग्रीक राइटर नहीं बोल रहे हैं। ग्रीक राइटर तो हमारे मैप बना रहे हैं, ग्रीक राइटर हमारे पोर्ट्स के बारे में लिख रहे हैं, ग्रीक राइटर हमारे से इतना प्रभावित है, वो देख रहे हैं कि यहाँ कुम्हार भी हैं, यहाँ पॉटर भी है, यहाँ पर आयरन स्मिथ भी है, यहाँ गोल्ड स्मिथ भी है, यहाँ पर कारवा भी है, यहाँ पर बंजारा भी है, यहाँ पर वुड कार्विंग भी है, यहाँ पर टेम्पल भी है, यहाँ पर सूर्य को भी है, यहाँ पर ये हो रहा है, वो ये देख रहे हो, वो देख के उनका दिमाग घूम रहा है कि भाई ये देश है कि क्या है। यहाँ पर स्नेक चार्मर भी है, यहाँ पर ये भी है। मतलब तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हो, प्रूव करने चाहते हो तुम अपने आप को सब, कि मैं प्रूव करूंगा। प्रूव नहीं करना है। डिस्कस द रीजंस बिहाइंड इमरजेंस ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। अब रीजंस मांग रहा है, रीजंस बिहाइंड इमरजेंस ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। हेल्दी सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, एक्टिव डेवलपमेंट, जन भागीदारी। अब इतनी बड़ी बात कह दी शुरू में। पहले बताओ, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया को तो रास्ता ही नहीं पता था, इसीलिए when India started moving forward, and it's such a huge and diverse country with only having some prosperous pockets of economic development, when industrialization started happening along with 5-year plans, then we found that it is very important to preserve the environmental wealth also. Then by 1970s, we had to take steps in this direction so that in the longer run we don't suffer. लेकिन आपने तो बहुत अब इंक्रीज कंज्यूमरिज्म, 90s तक कौन सा कंज्यूमरिज्म है? कंज्यूमरिज्म नहीं है, वो अवेयरनेस ही नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, प्लानिंग नहीं है, और इसीलिए जो है इलीगल तो होगा ही। इलीगल जो आपने बोला, वाइल्ड लाइफ क्राइम जो हो रहे थे, वो पहले उसकी अवेयरनेस ही नहीं थी। तो इसीलिए उस अवेयरनेस को लाने के लिए हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट स्टार्ट होनी पड़ी। लोगों ने फ्यूचर को बचाने की कोशिश करने के लिए उस समय हाथ उठाना शुरू किया। चिपको मूवमेंट आपने बताया, तो कारण सोचो, कटिंग ऑफ ट्रीज यूजिंग गांधीयन मेथड। तो वो ये मानते थे कि इन पेड़ों को काटने से आप इंडस्ट्री नहीं बना पाओगे, मत काटो इनको। तो ये एक तरीके का नहीं, उनका नहीं वरना सरकार चाहती तो नहीं करती ना, लेकिन सरकार ने किया, तो रिजल्ट आप बता रहे हो खुद ही। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड फॉरेस्ट पॉलिसी, साइलेंट वैली मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द वेस्टर्न घाट्स एंड द नीलगिरी ठार, जो आपने बताया। तो अब पहले वाले आंसर में जैसे हमने फट से लिख दिया क्रॉनिक कैपिटलिज्म, अरे ऐसे नहीं, वो आपको बताना पड़ेगा, आप शब्दों को समझिए। क्रॉनिक कैपिटलिज्म को भी ठीक से लाना पड़ेगा। डू यू हैव द एविडेंस? कहाँ है एविडेंस उसका कि क्रोनिक कैपिटलिज्म की वजह से साइलेंट वैली प्रोजेक्ट मतलब होने वाला था, अब उसको रोका गया, तो क्रॉनिक, तो ऐसे कुछ भी नहीं लिख दोगे। यू आर अकाउंटेबल फॉर वट एवर यू आर राइटिंग नाउ, एवरी वर्ड मैटर्स, एवरीथिंग मैटर्स। आप जो लिख रहे हो आपको कन्विक्शन होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख सकते, नंबर नहीं आएंगे कभी भी। So outcome of Nilgiri Reserve was ecological sensitive zone categorization which provided its legal status. नर्मदा एंड अपिको इन 19, वो पूछ रहा था भाई, मूवमेंट तो पूछ ही नहीं रहा है, सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, और साथ में ठीक है आप सिग्निफिकेंस को साथ रखते चलो। मतलब जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसे ही स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, बाकी तो नहीं भी बनेगा, हो सकता है और स्टूडेंट का भी ना बनेगा, आपके नंबर आ जाएंगे, हो सकता है नंबर तो इसमें भी आ जाए। लेकिन मैं तो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कि क्वेश्चन जो मांगता है ना, पहले कोशिश वही करो कि क्या मांग रहे हो, कोशिश करो उसी डायरेक्शन में सोचने की। रिवर कंजर्वेशन, गंगा बचाओ तारा गांधी, यमुना बचाओ महेश शर्मा, विच फॉट अगेंस्ट नॉट मेंटेनिंग ई फ्लो ऑफ रिवर इंडस्ट्रियल रिजल्ट, नर्मदा निर्मल धारा प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल, रिकॉग्निशन ऑफ गया एंड नैनीताल एंड कल्चरल रिवर्स। गया गया नेशनल एंड मिनरल कंजर्वेशन, सैंड माइनिंग, माध्या पाटकर इलीगल माइनिंग। तो आपने तो इतने नाम दे दिए पूरे, एकदम जबरदस्त, बहुत अच्छा लिखा है, मतलब नोट बहुत अच्छा है, ये अपने आप में लेक्चर ही हो गया। क्वेश्चन था सिग्निफिकेंस, और वो था इतना सारा, तो भाई कोई कोचिंग भी जिंदगी में ना बता पाए। जो इस आंसर को दोबारा सुन लेगा ना, वो टॉपर हो जाएगा मेंस का, और एक बार में उसको इतना मिल गया। कौन फॉरेन ऑथर पढ़े, कहाँ पढ़े, ये आंसर पढ़ ले, बात खत्म। कुछ छोड़ा है आपने? बायोडाइवर्सिटी मूवमेंट, पुणे सिटी मास मूवमेंट टू, कुछ छोड़ा है क्या? Even today, also countries facing new environment movement with active participation of NGO and PRI, like Himalaya Bachao, Responsible Tourism, अरावली बचाओ, सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी पॉलिसी गाइडलाइंस। ये आंसर पढ़ने के बाद एग्जामिनर मैन छोड़ छाड़ के पहाड़ों में जाना चाहेगा, और वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट का पार्ट बनना चाहेगा।
देयरफॉर मूवमेंट्स हैव हेल्प। किसी ने नहीं पूछा था मूवमेंट की हेल्प है या नहीं। क्वेश्चन लेके जाओ, क्वेश्चन ले जाकर फिर से जाओ। क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है रीजन, क्या कारण है एनवायरमेंटल मूवमेंट के इमर्ज होने के, और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। रीजन क्या था, उनके कारण आपने रीजन तो बताया नहीं। थोड़े बहुत रीजन बता के बाकी आप फिर शुरू हो गए, आपके दिमाग की बत्ती जल गई और आपको जो नाम आते गए आपने पढ़ 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 सब बता दिया जो भी पता है। और ना सिग्निफिकेंस बताया उसका। सिग्निफिकेंस लास्ट में आपको मजबूरी है, अब क्या करूं, आंसर खत्म होने वाला है, शीट खत्म हो गई है, अगला क्वेश्चन आ गया है। तो लास्ट में 2 लाइनों में आपने लिख दिया कि भाई मूवमेंट देयरफॉर दे हेल्प इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस विच रिजल्टेड इन द लीक। तो ये लास्ट का जो 4 लाइन है, आप एग्जामिनर को यहाँ लिख सकते हो, अबे तूने ऊपर जो पढ़ा उसको भूल जा, नीचे की 4 लाइन पढ़ और नंबर दे, थैंक यू। तो इससे भी फिर भी 1 नंबर 2 नंबर आ जाए। समझे आप मेरी बात? So let's move forward.